Let's understand the law of manifestation. जो भी आपकी ड्रीम रियलिटी है, how do we manifest this? This is a 4-step process and every step is important और हर एक स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे with practical examples के जो भी एरिया आपकी लाइफ का है. Maybe it's you want money in the bank, maybe you want that great relationships, maybe you want to have that great career. Whatever it is you require, you can manifest if you understand that it is a law of manifestation. If you understand the law of gravity, जैसे कोई भी चीज अगर आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरने वाली है, राइट? इट इज अ लॉ. और अगर लॉ को फॉलो करेंगे देन द लॉ इज गोइंग टू ओबे यू. तो अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. इट इज अ वेरी सिंपल लॉ, वेरी बेसिक लॉ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट येट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. पहले समझते हैं व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. पहला स्टेप जो है इज योर थॉट्स. Think and grow rich. It is not hard work and grow rich. It is not at all smart work and grow rich. It is think and grow rich. The starting point is your thinking. It is your thought process. Thought शुरुआत होती है for everything to manifest. Thought is the root. अगर आपको आपके fruits को change करना है तो आपको roots को change करना होगा. जैसे आइंस्टाइन ने बोला है that everything is energy. Quantum physics में बोला गया है that सब कुछ ऊर्जा है. So thought is also energy. Thought is the most potent form of energy. Thought से ज़्यादा कोई powerful शक्ति नहीं है लाइफ में. I'll give you a simple example. Thought इतना powerful है that it can penetrate all time and space. अगर आप किसी को याद कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, and maybe that person is on the other side of the world, but still that thought process immediately एक काम करने लगता है. Or maybe that person feels that, oh, you're thinking about me, and that person messages you or calls you or somebody else talks to you about that particular person. तो क्या हो गया? Thought penetrates everything. जहाँ light, जहाँ sound नहीं जा सकता, लेकिन आपका thought power काम कर सकता है. So thought is the most highest form of energy. ये starting point है of the law of manifestation. Feelings is the second step of the law of manifestation. Thoughts will determine the kind of feelings which you have. So thought is the cause, feeling is the effect. अभी feelings और emotions it's like a double-edged sword. कभी कभी positive emotions होते हैं, कभी कभी negative emotions होते हैं. Positive emotions होने चाहिए like love, joy, happiness, hope, faith, desire, enthusiasm. ये सारे सब positive emotions हैं. लेकिन negative emotions भी होते हैं. For example, fear, hatred, greed, jealousy, envy. ये सारे negative emotions हैं और ज़्यादातर लोग negative emotions में रहते हैं. That's where the vibration starts to happen. Understand this. जो thought है वो thought is a vibration. वो thought determine करेगा आप कैसे feelings लाते हो और अगर feelings गलत है तो the next step और गलत जाएगा. So let's understand कि feelings को हम कैसे use कर सकते हैं और what is the connection of this second step of feelings with thought process. Normal thought has X amount of power. एक पावरफुल थॉट को एक X अमाउंट ऑफ पावर होता है, लेकिन उस थॉट को मल्टीप्लाई क्या करता है? आपके फीलिंग्स करते हैं, आपके इमोशंस करते हैं. जैसे एक नॉर्मल थॉट है और उसके साथ में आपने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जोड़ लिया तो वो नॉर्मल थॉट का पावर मल्टीप्लाई हो गया, 10x हो गया. I'll give you a very simple example. क्या ऐसा हुआ आपके लाइफ में कि जब भी कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए लाइफ में और जो चीज़ नहीं चाहिए वही होती है? I mean the thing which you feared manifested in your life. It's called the Murphy's law. क्यों ऐसा होता है? जैसे आपका थॉट है ऐसा नहीं होना चाहिए और this should never happen in your life or this should never happen in my life. So ये नॉर्मल थॉट है, उसके साथ में कोई इमोशन अभी नहीं जुड़ा गया है. लेकिन जैसे 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 you keep on thinking that thought ऐसा नहीं होना चाहिए, you start to have that fear, that doubt, that worry, that anxiety. ये strong emotion of fear जैसे आपने जोड़ लिया वो थॉट को तो नॉर्मल थॉट का पावर मल्टीप्लाई हो गया और जो नहीं होना है वही होता है आपके लाइफ में. देखिए, ऑब्जर्व करिए आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस. ऐसा जरूर हुआ होगा और अभी ये ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे हाँ यार, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रॉन्ग नेगेटिव इमोशन को अटैच कर लिया, उस वजह से वो थॉट मैनिफेस्ट हो गया. तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि मैं कौन से फीलिंग्स में रहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आई हैव, बिकॉज दोस फीलिंग्स एंड इमोशंस इज गोइंग टू क्रिएट द नेक्स्ट स्टेप. सी अंडरस्टैंड दिस. थॉट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इन नेचर. Feelings is the magnetic force in nature.
इस थॉट्स और फीलिंग्स को हमने कंबाइन कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन कर लिया, तो ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स attraction starts to happen. More about it in the later part of this particular video. अभी आप बोलेंगे यार मैं तो मोटिवेटेड हो गया, YouTube वीडियो रोज देखता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन प्रोग्राम भी रोज अटेंड करता हूँ, मोटिवेशन बुक्स पढ़ता हूँ, अच्छा है, जाना चाहिए, यू शुड बी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। लेकिन सिर्फ फीलिंग से अगर रिजल्ट्स आते तो कोई मेहनत करता ही नहीं। सो द फोर्थ स्टेप विच इज रिजल्ट्स और सेकेंड स्टेप जो फीलिंग्स, उसके बीच का जो गैप है, विच इज द थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड एज एक्शंस। मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन आपको लेनी है तो ही तो वो रिजल्ट आएंगे। बिकॉज जैसे न्यूटन ने बोला है, एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इट इज अ साइंस। तो सिर्फ अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, महसूस करेंगे, सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे, सिर्फ एफर्मेशंस लिखेंगे, मे बी सिर्फ जस्ट गोल कार्ड्स को बनाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वो सब करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो करने से आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दैट्स द रियल रीजन पीपल से कि ये सब चीजें काम नहीं करती यार। कर्म करो, कर्म तो करना ही है, बट कैसे कर्म करना, अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि स्टार्टिंग पॉइंट इज थॉट्स। अगर थॉट्स गलत है तो फीलिंग्स गलत होंगे, अगर फीलिंग्स गलत है तो एक्शंस गलत होंगे, हमारे कर्म गलत होंगे। इफ एक्शंस आर रॉन्ग तो फाइनल स्टेप रिजल्ट्स भी रॉन्ग होंगे, एंड अल्टीमेटली योर रिजल्ट्स इज योर डेस्टिनी। अंडरस्टैंड दिस। संकल्प इज योर थॉट इज योर संकल्प, एंड योर रिजल्ट इज योर डेस्टिनी, इज योर सिद्धि। तो संकल्प से सिद्धि को जाने के लिए ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको रास्ता चलना होगा, आपको ही चलना होगा। आई एम जस्ट ओवर हियर एज अ मैसेंजर टू एक्सप्लेन टू यू दिस इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो चलिए समराइज करते हैं। पहला स्टेप थॉट्स विल डिटरमिन योर फीलिंग्स विल डिटरमिन योर एक्शंस, एंड योर एक्शंस विल डिटरमिन योर रिजल्ट्स। नाउ ये तो सिंपल लॉ है सिद्धार्थ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कहाँ रॉकेट साइंस है, ये तो मुझे पता भी है और ये मुझे मालूम भी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसको सुना भी है, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, फिर भी मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये प्रश्न आपके पास है? तो देखिए आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि why people are not getting the results they want, why people are getting the results which they don't want despite doing all this visualization and affirmation and etc all the rituals. Results जो आप देख रहे हो, most people are programmed to look at the results and then think in reverse. सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मनी इन द बैंक का। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को खोलते हो, अपना बैंकिंग ऐप ओपन करते हो, एंड यू लुक एट योर बैंक बैलेंस, एंड व्हेन यू लुक एट योर बैंक बैलेंस यू से ओह इतना ही पैसा है मेरे अकाउंट में, अरे यार क्या होगा यार, अभी तो महीने की शुरुआत भी नहीं हुई और कैसे महीना कटेगा। इट इज मोर ऑफ मंथ एंड लेस ऑफ मनी। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए होंगे, 100% आए होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग? You are looking at the results, you're looking at the bank balance, and that bank balance is determining what is your thought. Your bank balance is determining आप कैसा सोच रहे हो। That means we are programmed to think in reverse. अरे भाई लॉ तो लॉ है, जैसे नेचुरल लॉ है, as you sow so shall you reap. जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे थॉट्स रहेंगे वैसे रिजल्ट्स आने वाले। The roots are going to determine the fruits. तो जैसे आपने वो चीज सोची कैसे क्या होगा, पैसा कम है, the same results are going to come again and again and again. और ये ऐसा एक vicious cycle बन जाता है। I mean people go to motivation programs, people watch the YouTube videos, people go and listen to all these audio books, but same old results because they are thinking in reverse. बच्चा रिपोर्ट कार्ड को देखता है, मुझे C मिला है, and that report card controls that thoughts. Oh, I am a C grade student. वो कैसे A+ ग्रेड बन पाएगा? उसने सोचा ही, समझा ही नहीं कि we are actually thinking in reverse. You look at your report card, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा डायबिटीज बढ़ गया, oh this report is wrong. We are looking at the report card. आप अपने सेल्स टारगेट्स को देख रहे हो, अरे बाप रे, क्वार्टरली वर्स्ट परफॉर्मेंस, and that sales target is controlling our performance, is controlling our thinking. तो कैसे रिजल्ट्स चेंज होंगे? और एक एग्जाम्पल, जैसे रिलेशनशिप्स, आप वही देख रहे हो सिचुएशन को, ओ शी कीप्स ऑन नैगिंग मी, यार हमेशा कंप्लेन कर रही है यार, मेरे काम पे मुझे फोकस नहीं करने देती। और मे बी इफ यू लुकिंग एट योर हस्बैंड एंड सेइंग, अरे हमेशा ही इज गोइंग टू अब्यूज, मुझे अब्यूज करते रहते हैं।
what's going to happen? That actual reality which you're thinking is controlling your thoughts. अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आपको सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। तो दाद इसका रास्ता क्या है, कैसे इस विशियस सर्कल को तोड़े? अंडरस्टैंड दिस। ये थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट्स का जो बेस है, थॉट कहाँ से आते हैं? थॉट आपके ओल्ड कंडीशनिंग से आते हैं, आपके हैबिचुअल थिंकिंग से आते हैं, आपके पैराडाइम से आते हैं। तो जब तक वो आपने आपकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, ओल्ड कंडीशनिंग को चेंज नहीं किया तो थॉट्स चेंज नहीं होंगे। थॉट्स चेंज नहीं होंगे तो सेम साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। दिस इज़ वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी जड़ों पे काम करना है, आपके जो अवचेतन मन पे काम करना है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। और जब भी जैसे आप कॉन्शियस थिंकिंग में रखते हो कि हाँ मुझे तो अमीर बनना है, आई वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, वो सारी चीज़ें कॉन्शियस थॉट पे रहती है। अरे वो कॉन्शियस थिंकिंग कहाँ से इम्पैक्ट करेगी? बिकॉज वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में मोटी मोटी दीवारें जो आपने बना दी है, वो बिलीफ को तोड़ना होगा, जड़ों तक जानना होगा। और जड़ों तक अब जाएंगे तभी तो रिजल्ट्स चेंज होंगे, तभी तो पैराडाइम शिफ्ट होगी, तभी तो आपकी कंडीशनिंग चेंज होगी, तभी तो आपके थॉट्स चेंज होंगे, तभी डिफरेंट फीलिंग्स आएंगे, तभी डिफरेंट एक्शंस लेंगे और तभी नए रिजल्ट्स आएंगे। अंडरस्टैंड दिस लॉ। द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके लिए जो चाहे आपको दे सकता है। आपको ये लॉ सही तरीके से यूज करने के लिए आपकी कंडीशनिंग को चेंज करनी होगी। क्या आप तैयार हो टू चेंज योर कंडीशनिंग? आर यू रेडी टू रियली स्टार्ट टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस पैराडाइम, योर मनी ब्लूप्रिंट, योर वे यू लुकिंग एट योर लाइफ, आपके ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स, आपके हैबिचुअल थिंकिंग को? और जब तक आपने उसको चेंज नहीं किया तो ऊपर से आप अच्छा सोचते रहेंगे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जड़ों तक जाना होगा। आई थिंक दिस इज द रियल वे टू अंडरस्टैंड, टू क्रिएट योर डेस्टिनी। योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। रियली बी केयरफुल कि आप कौन से थॉट सोच रहे हो, बिकॉज एवरी थॉट इज अ वाइब्रेशन और हर एक वाइब्रेशन आपके लिए कुछ अट्रैक्ट करके लाएगा और वही आप अट्रैक्ट कर सकते हो जिस वाइब्रेशन में आप हो। आर यू रेडी टू कंट्रोल योर थॉट्स? Are you ready to really manifest your dream results? Comment in the comment box how are you going to do this, and tell me what kind of videos you want me to make on. I will definitely make those videos. I will watch your comments. If you have liked this particular video, then please like करिए हमारे वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, and I will see you in the next one. I am Siddharth Shah. Let's get ready to think and grow rich.